तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें है पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। सबसे पहले टॉपिक 2.8.1 में बात हो रही है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज। द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड was specified, the charges and their locations and the potential energy of the system of those charges was determined। ये हमने करा। In this section, we ask a related but a distinct question: what is the potential energy of a charge q in a given field? और इसकी बात की गई है, कुछ आगे की बातें बताई गई हैं। अब यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। The main difference is that we are now concerned with the potential energy of a charge or charges in an external field. External field E is not produced by given charges whose potential energy we wish to calculate. E is produced by sources external to the given charges। अभी हो क्या रहा था पिछले टॉपिक में, पिछले वीडियोस में हमने ये देखा कि पहले चार्ज Q1 को लेके आते थे तो वहाँ पर ऑलरेडी कोई दूसरी फील्ड प्रेजेंट नहीं होती थी, राइट। लेकिन अब क्या होगा, अब इस Q1 को जब आप ला रहे होंगे तो वहाँ हो सकता है पहले से कोई दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट हो। अभी तक के क्वेश्चंस में उन्हीं चार्जेस की फील्ड के अगेंस्ट वर्क हो रहा था जिनकी पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट कर रहे थे। तो ये सब बातें हैं। The external sources may be known, but often they are unknown or unspecified. What is specified is the electric field E vector or the electrostatic potential V due to the external sources. And we assume that the charge Q does not significantly affect the sources producing the external field। ये सब assumptions हैं, ये सब prerequisites हैं कुछ भी करने के लिए। This is true if Q is very small or the external sources are held fixed by other unspecified forces. Even if Q is finite, its influence on the external sources may still be ignored। यानी अगर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो ये सब बातें इतनी ज़्यादा आपको ध्यान देने की नहीं है। और टारगेट अपना क्लियर रखें। वी आर इंटरेस्टेड इन डिटरमाइनिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ गिवन चार्ज Q in the external field. We are not interested in the potential energy of the sources producing the electric field. The external field E and the corresponding external potential V may vary from point to point. By definition, V at a point P is the work done in bringing a unit positive charge from infinity to the point P। ये हम already पढ़ चुके हैं। And we continue to take the potential at infinity to be zero as in previous videos। Thus, work done in bringing a charge Q from infinity to the point P in the external field is QE। This work is stored in the form of potential energy of Q। If the point P has position vector r vector relative to some origin, we can write potential energy of Q at r vector in an external field is given by Q into V at point which is at a distance r from the origin। Or if an electron with a charge Q this much is accelerated by a potential difference of 1 volt, it would gain energy of Q delta V 1.6 into 10 to the power minus 19 joule। This unit of energy is defined as 1 electron volt। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो definition of electron volt समझाई गई है। Electron volt is a unit of energy and 1 electron volt is 1.6 into 10 to the power minus 19 joule। और डेफिनेशन यहाँ पे मिल रही है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से अगर एक्सेलरेट किया जाता है तो उसको हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, ठीक है। और जूल में इसका कन्वर्जन यहाँ पे लिखा हुआ है। द यूनिट्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन एटॉमिक, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। फिर उसके बाद में 1 किलो वोल्ट, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। और इस तरह से आगे भी इन्होंने दिए हुए हैं, बट इतना कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना आता है तो आपका काम आराम से चल जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। जब हम किसी एक्सटर्नल फील्ड में दो चार्ज के सिस्टम को ले जाके रख देते हैं, है ना। तो नेक्स्ट वी आस्क व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 लोकेटेड एट R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली in an external field।
So first we calculate the work done in bringing the charge q1 from infinity to r1. Work done in this step is q1 v1. Next we consider work done in bringing q2 to r2. In this step work is not done only against the electric field but also against the field of q1. Now this is very interesting. मान लीजिए ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ पोटेंशियल है कहीं पे V. इसमें जिस पॉइंट पे आप ले जाना चाहते हैं चार्ज को वहाँ पे पोटेंशियल है V. तो अब आप ये देखिए कि अगर आप पहले चार्ज को लेके आते हैं Q1 को, तो Q1 को लाने में जो आपने वर्क किया वो Q1 इंटू उस पॉइंट का पोटेंशियल है जिस पॉइंट पे आप इसको लाना चाहते थे. लेकिन जब आप एक दूसरे चार्ज Q2 को लेके आते हैं तो उसको लाने के लिए Q2 इंटू V, जिस पॉइंट पे भी आप उसको लेके आ रहे हैं उस पॉइंट का जो भी पोटेंशियल है, मान लो आप A पॉइंट पे लाए थे Q1 को और B पॉइंट पे लाए थे Q2 को, तो जब आप Q1 को लेके आए तो A पॉइंट तक लाने में जो आपने वर्क किया वो Q1 इंटू वी, ए नाम दे दिया हमने उसको. लेकिन जब आप Q2 को लेके आ रहे हो ना तो B पॉइंट तक लेके आ रहे हो तो Q2 इंटू वी भी वर्क तो करना ही पड़ेगा. उसके अलावा आपको ये जो Q1 है, मान लीजिए Q2 से R डिस्टेंस पे है, तो इसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा कि Q1 Q2 बाय R. ये एक एक्स्ट्रा वर्क डन इसमें ऐड हो जाएगा. तो इस पूरे सिस्टम को असेंबल करने में जो वर्क लगा उसमें पहले Q1 को लाने में वर्क करना पड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट. फिर जब Q2 को लेके आए हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भी वर्क हुआ है और जो Q1 चार्ज आ चुका है उसके अगेंस्ट भी वर्क हुआ है. ठीक है. So these are the results. Now by the superposition principle for fields, we add up the work done on Q2 against two fields, E vector and that due to Q1. उन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क डन्स को हम ऐड करेंगे और हमारे पास ये रिजल्ट आएगा. Thus, now this is important result. Potential energy of the system is total work done in assembling the system of configuration. और वो कितना हुआ? पहले जो A पॉइंट पे आप 1 नंबर चार्ज को लाए, फिर B पॉइंट पे 2 नंबर चार्ज को लेके आए और उस 2 नंबर चार्ज को 1 के अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ा, यानी अगर मैं यहाँ पे ये इक्वेशन 1 बोल दूँ और ये नीचे वाले को इक्वेशन 2 बोल दूँ तो इक्वेशन 1 का रिज़ल्ट और इक्वेशन 2 का रिज़ल्ट मिल कर के पूरा टोटल रिज़ल्ट यहाँ पे आता है. अब डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस. अब यहाँ तो बहुत सिंपल सा सवाल दिया है. आपको Q1 चार्ज की वैल्यू दे दी गई है, Q2 चार्ज की वैल्यू दे दी गई है, दोनों के बीच में सेपरेशन 18 सेंटीमीटर का है ये दे दिया गया है. क्योंकि एक पॉइंट ओरिजिन से 9 सेंटीमीटर पॉजिटिव वाली साइड में है तो एक -9 लेफ़्ट हैंड साइड में है, तो टोटल सेपरेशन कितना हो गया 18 सेंटीमीटर. इसको ले जाके सीधा आपको, क्योंकि एनर्जी पूछ रहा है, तो Q1 Q2 बाय R का जो रिलेशन हमने सीखा था इससे पहले वाले वीडियो में वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा. अगर इसके बी पार्ट की बात करें, हाउ मच वर्क इज़ रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे, तो जितना वर्क डन इस सिस्टम को असेंबल करने में लगा है -0.7, उसका जस्ट अपोजिट साइन कर दीजिए. क्योंकि देखिए किसी भी क्लोज लूप का वर्क डन, किसी भी क्लोज लूप में चार्ज को मूव करवाने का वर्क डन 0 है. अगर आप इन्फिनिटी से किसी पॉइंट P तक लाने में W वर्क डन कर रहे हैं तो P से वापस इनफाइनाइट पे ले जाने में कितना वर्क करेंगे -W, तभी टोटल वर्क डन आपका क्लोज लूप का 0 आएगा, है ना. इन अ कंजर्वेटिव फोर्स टोटल वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, स्पेशली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, टोटल वर्क डन ऑफ मूविंग अ चार्ज इन अ क्लोज लूप इज 0. सी पार्ट की अगर बात करते हैं, सपोज दैट द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिस मच, वेयर ए इज़ अ कांस्टेंट जिसका वैल्यू गिवन है. व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कन्फिगरेशन. तो दो चार्जेस थे, अगर हम स्टेप बाय स्टेप भी कैलकुलेट करें तो पहले चार्ज को आप जब लेके आ रहे हो तो आपको केवल फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है. दूसरे चार्ज को आप जब लेके आ रहे हैं तो फील्ड के अगेंस्ट तो वर्क करना ही करना है और सिस्टम के अगेंस्ट भी वर्क करना है. यानी जो चार्ज आपका Q1 बन चुका था ऑलरेडी, जैसे अगर मैं बात करूं वही पहले वाला एग्जांपल, पहले आप Q1 को लेके आए A पॉइंट पे, तो आपको केवल 1 को A पॉइंट पे लाने के लिए जो वर्क करना पड़ा Q1 इंटू वी ए,
जो यहाँ पे इस तरह से लिख के दे रखा है इन्होंने, वो वर्क हुआ। लेकिन जब दूसरे चार्ज को लेके आ रहे हैं Q2 को B पॉइंट पे, तो वहाँ का पोटेंशियल इनटू चार्ज का वैल्यू प्लस जो पहला चार्ज आप पहुँचा चुके हो उसके अगेंस्ट भी तो वर्क करना पड़ेगा, तो वो अलग हो जाएगा। तो K Q1 Q2/R वाला टर्म का वैल्यू तो हम पिछले पार्ट में कैलकुलेट कर ही चुके थे, ये थोड़ी नई चीज़ है Q इंटू वी वाली। तो Q इंटू वी को कैलकुलेट करने के लिए क्या करा इन्होंने, आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू गिवन था A/R²। पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे आप, V इक्वल टू इंटीग्रेशन E.dr, है ना। आगे वैसे माइनस साइन भी होता है, तो E यानी कि A/R², इसका इंटीग्रेशन होगा R के रेस्पेक्ट में, तो ये आपको मिलेगा माइनस का A/R। ठीक है, इंटीग्रेट कर दिया आपने इसको और ये वैल्यू आ गई। बाहर भी एक माइनस था, उसके साथ मिलकर के रिजल्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव A/R। क्योंकि देखिए इंटीग्रेशन आप जानते होंगे, ये पावर R की -2 है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो +1 होगा, -R की पावर -1, और वो माइनस आ जाएगा एक्स्ट्रा, और इक्वेशन में भी एक नेगेटिव बाहर चल रहा है, उसके साथ मिलके प्लस हो जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे A/R देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ये थोड़ा अजीब तरीके से लिखा हुआ है ना, इसमें आपको हो सकता है देखने में अजीब लगे, तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ साइड में थोड़ी जगह निकाल के आपको करके भी दिखा दूँ। यहाँ कर देते हैं, देखिए इस वाले स्टेप को इधर कर रहा हूँ। बेसिकली टोटल वर्क डन की बात हो रही है सिस्टम को असेंबल करने के लिए। तो पहले Q1 चार्ज कितना था, 7 माइक्रोकूलम को आपने लेके आया, और A/R, ठीक है, A/R डिस्टेंस तक लेके आ रहे हो मान लो। तो ओरिजिन से डिस्टेंस था, अगर आपको ध्यान हो, R इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। वैसे इसमें मेंशन किया नहीं है, बट और कोई इसमें बात बताई नहीं गई है, तो हम ओरिजिन से डिस्टेंस माने। तो 7 माइक्रोकूलम वर्क डन क्या है, Q इंटू वी। तो 7 माइक्रोकूलम पोटेंशियल के बराबर, पोटेंशियल कितना आया था, A/R कितना डिस्टेंस है, 9 सेंटीमीटर ओरिजिन से, तो 9 इंटू 10⁻²। दूसरे चार्ज को लेके आए, दूसरा कितना चार्ज है, -2 माइक्रोकूलम। तो याद रहे चार्ज का साइन कंसिडर करें आप, इसमें स्केलर क्वांटिटी है, तो माइनस मैंने जो लगाया है ये चार्ज की वजह से ही है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, इसकी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, या यूँ कह लीजिए नेगेटिव चार्ज का वर्क डन का नेचर या जो साइन है वो पॉजिटिव चार्ज के वर्क डन के साइन के अपोजिट होगा। इसमें भी A/R ओरिजिन से इसका डिस्टेंस भी कितना है, 9 सेंटीमीटर है। यहाँ पे डिस्टेंस में आप देख सकते हैं, यहाँ मैं साइन कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल डिस्टेंस में इंटरेस्टेड हूँ, डिस्टेंस किस साइड है उसकी डायरेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो ये टोटल वर्क डन हुआ उस दोनों चार्जेस को लाने का फील्ड के अगेंस्ट। 7 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम को फील्ड के अगेंस्ट लाने में जो वर्क डन हुआ वो है। इसके अलावा इनका आपस का वर्क डन भी होगा, क्योंकि Q1 को जब आप लेके आए तब तक Q2 नहीं पहुंचा था, तो केवल Q1 के ही अगेंस्ट वर्क किया था, लेकिन अब Q2 को लाएंगे तो Q1 के अगेंस्ट भी वर्क होगा। सो K Q1 Q2, एंड अगेन ऑब्वियसली चार्ज का नेगेटिव साइन आएगा, -2 वाले का माइनस इसको नेगेटिव बना देगा टर्म को, और चार्जेस के बीच का सेपरेशन है 18 सेंटीमीटर, 0.18 मीटर, और जो कि ये चीज़ सॉल्व करने पे 0.7 आती है माइनस की, वो हम पहले पार्ट में कैलकुलेट कर चुके हैं। और रही इस वाले टर्म की बात अगर करें, तो इसमें A का वैल्यू आपको दे रखा है 9 इंटू 10⁵, उसको आप सब्सटीट्यूट कर देंगे तो सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा। थोड़ा अच्छा सवाल है, मज़ेदार है, कॉन्सेप्ट काफ़ी यूज़ हो रहा है इसमें, तो इसको अच्छे से आप समझ लें, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। बस सिंपल सी एक बात ध्यान रखनी है आपको कि जब आप सिस्टम को असेंबल कर रहे हैं किसी एक्सटर्नल फील्ड के प्रेजेंस में, तो फील्ड के अगेंस्ट तो वर्क होगा ही होगा, और चार्जेस का आपस का वर्क डन वैसे ही कैलकुलेट होगा जैसा पिछले वीडियो में हमने देखा है। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। चलिए इस टॉपिक की बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।